Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss few more banking words. Post-dated check. This is a word used for such checks where date of check is not today's date but some future date. Say today is 24th of June 2021. And if someone put a date 30th of June 2021, this check will be called post-dated check. And post-dated checks are in use for business purposes, and even banks also take such checks for repayment of loans. Next term is power of attorney, POA. This is a legal document giving one person, who may be called agent or attorney, powers to act for another person who is called principal. That means a person can authorize to act on his or her behalf for certain transactions or general transactions. The next term is premature withdrawal. This premature withdrawal is related to term deposits in the bank. Say a customer is maintaining recurring deposit with the bank, or he is maintaining fixed deposit with the bank, and there is a due date. That means say a FD or RD is maturing in December of this year, but customer is in need of money. So he has two options. One is he can take loan against this deposit, but he wants to take back the money. So premature withdrawal is permitted. That means he can get back his principal along with interest at lower rate than agreed, and this is called premature withdrawal. Then promissory note. Promissory note is defined in Negotiable Instrument Act. So this is promise or undertaking in writing by one person to pay a certain sum of money on demand or on future date to any other person. So this is a sort of a promise written and signed by the maker. Next word is provision. Provisions are made by the banks for possible loss for future transactions. In banking, bank recognizes a loss on loan ahead of time. That means based on classification, sometime we have to book loss in our profit and loss account, that is called provision, and this provision can be released back if recovery happens. For current affair, I have given you a very good link. Link is available in description. Click the link, you will land up on the app. Download the app and take this year plan. Apply coupon code AA03, you will get 10% discount, and then you can read this current affairs from this source. Second is how to prepare banking, financial and economic awareness. For this, I have given you link of playlist. Watch 10 to 15 videos per day. It will enhance your knowledge. And to maintain good health, I have given you another playlist. Watch these videos and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब इस वीडियो में हम कुछ और बैंकिंग की टर्म्स डिस्कस करेंगे. पहला टर्म है पोस्ट डेटेड चेक. मीन्स ऐसा चेक जिसके ऊपर आज के बाद की डेट डली हुई है. नॉर्मली जब हम चेक काटते हैं तो जिस दिन चेक बना रहे हैं उसी दिन की डेट का डालते हैं, पर बैंकिंग में ये भी अलाउड है कि आप आने वाली तिथि भी डाल सकते हैं. उसका इफेक्ट क्या है कि जो डेट है चेक की उसी दिन वो चेक की पेमेंट की जा सकती है. दैट मीन्स यदि मेरी इंटेंशन है कि किसी चेक की पेमेंट अभी ना हो, फ्यूचर डेट पे हो, तो मैं पोस्ट डेटेड चेक इशू कर सकता हूँ. और ये काफ़ी व्यापार के अंदर रेगुलर फीचर है. बैंक्स भी इन चेक्स को एक्सेप्ट करते हैं जब वो लोन्स देते हैं, और उसमें रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए भी पोस्ट डेटेड चेक लेते हैं.
अगला टर्म है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट जो एक व्यक्ति को, जिसको हम एजेंट भी कह सकते हैं, अटॉर्नी भी कह सकते हैं, ऐसी पावर्स दे रहा है कि वो दूसरे के बिहाफ पे कुछ कार्य कर सके। तो पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, और जिसके बिहाफ पे ये व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद है प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल लागू होती है बैंकिंग में टर्म डिपॉजिट्स पे। अब एक कस्टमर है, उसने एक आरडी बनाई हुई है, वो समय से पहले पेमेंट चाहता है। एक व्यक्ति है, उसने फिक्स डिपॉजिट बनाई हुई है, अभी वो मैच्योर होनी है, मान लीजिए अक्टूबर में, उसको अभी पैसा चाहिए। अब उसके पास ऑप्शन है, या तो लोन ले ले वो इसके अगेंस्ट, मान लो लोन नहीं लेना चाहता तो वो अभी भी इसकी पेमेंट ले सकते हैं। इस पेमेंट को हम प्री मैच्योर विड्रॉल कहते हैं। यहाँ पर उसको प्रिंसिपल मिलेगा प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर मिलेगा जो एग्रीड था, सेम रेट नहीं मिलेगा, कम रेट उसको मिलेगा और उसके आधार पर उसको पेमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट टर्म है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रावधान है, जहां उसका मेकर एक प्रॉमिस करता है या अंडरटेकिंग देता है लिखित के अंदर कि वो एक सर्टेन सम अदा कर देगा जब भी उससे मांगा जाएगा, या एक निश्चित तिथि को दूसरे व्यक्ति को। तो इसको हम नोट बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, और इसकी लीगल सेंटिटी है। फिर है प्रोविजन। बैंकों के अंदर जो लोन्स हैं, अगर वो एनपीए क्लासीफाई हो जाते हैं या डाउटफुल हो जाते हैं कि इसमें रिकवरी आने की संभावना कम हो गई है, ऐसी स्थिति में बैंक वर्तमान में ही कुछ खर्चा, कुछ एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लेता है, ताकि जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उसको अभी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। इस विधि को प्रोविजन कहा जाता है। तो ये हमने आज कुछ शब्द कवर किए हैं। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो बैंकिंग की आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। 10 से 15 वीडियोस रोज देखिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको अच्छा सोर्स बताया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस लिंक को क्लिक करेंगे, आप एक ऐप पे पहुंचेंगे, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और करंट ईयर का प्लान ले लीजिए और उसके अंदर कूपन कोड AA03 लगा देंगे, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, करंट अफेयर की एक्सेस मिल जाएगी। इसको यहाँ से पढ़िए और नॉलेज एक्वायर करिए। अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया है। इन वीडियोस को देखिए और सेहतमंद रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।